सीखते ही जाएंगे, झूमे नाच गाएंगे, सितारों से आगे भी दुनिया बनाएंगे। जस्ट जूनियर, जस्ट जूनियर, जस्ट जूनियर, जस्ट जूनियर, जस्ट जूनियर, जस्ट जूनियर। Keep reading. It's the most marvelous adventure anyone can have. Books and doors are the same thing. You open them and go through into a other world. Hi friends, I'm Sanskriti Verma. And I'm Alia Hussain. Welcome back to our favorite show, Just Junior. Just junior, आलिया, क्या तुम्हें पता है reading is a fundamental skill and an essential activity that has profound impact on our development, education and overall well-being. Yes, I know. Reading is a lifelong activity that enables continuous learning and personal growth. Right, आलिया, मुझे पढ़ाई का सबसे ज़्यादा फायदा ये लगता है कि वो आपको बेहतर और ऊंचे स्तर पर पहुंचाने की क्षमता देता है. Yes, friends, और वो हमें आगे बढ़ाने का मौका भी देता है. Yes, आलिया, you are absolutely right. Friends, ये आपकी एक इम्पोर्टेंट हैबिट होनी चाहिए. दी, क्या आज हम एरोबिक्स नहीं करेंगे? क्योंकि एरोबिक्स हमारी लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है. Absolutely right, Alia. Physical exercise is a must. Friends, aerobics can change intensity to match your fitness level. And let's welcome Shweta Di and two junior friends, Afrin and Anvita, to our show. बिल्कुल आलिया, चलते हैं फिटनेस वर्ल्ड में. बुलाते हैं श्वेता दी, आफरीन और अनविता को. just junior. Maya Angelou once said that every great achievements require time. I hope you all are giving time to your fitness of mind and body. Good morning everyone. I, Shweta, welcome you again to this fun-filled fitness episode. Let's start with warm-up. And today's warm-up is jumping jacks followed by scissors. Today's focus will be overall stamina build-up. Our first exercise today is jumping up with hands crossing the knees. This is a very good exercise for your legs and abs. Second exercise which we will do today is chop forward and back. This is a great exercise for your obliques and lower body. Third exercise which we will do today is lower to high intensity jump. This is very good to build up your stamina. Fourth exercise which we will do today is forward pulse with hands punching side to side. This works on your obliques and abs.
cool down. I suggest you all to do all these exercises in the set of 3 to get the best results and minimum of 15 to 20 counts. For staying with us. See you next week with full josh and smile. Till then, be active, be awesome. Jai Junior, Thank you so much, Shweta Di, Afreen and Anvita. थैंक यू श्वेता दी, आफरीन और अन्विता, आपने हमें फिट रहना सिखाया और इजी स्टेप्स भी सिखाए. Friends, physical activity helps improve strength and mental well-being as well. We must do exercise daily. It helps in our flexibility. Jai Junior. Friends, reading enhances language skills, communication skills, and your vocabulary. Song reading skills are fundamental for success in school and higher education. Friends, आज हम इसी टॉपिक पे importance of reading and exploring books पर बात करने जा रहे हैं. तो इस टॉपिक पे बात करने के लिए हम अपने शो में बुला लेते हैं मिसेस ऋतु सोनी भगत. She is a writer, author, educationalist, and a media person. Let's welcome Ritu ma'am to our show. Welcome to our show, ma'am. Welcome, ma'am. Please have a seat. Friends, let's also invite a little junior, Gauri Verma. She is an avid debater, reader, and writer. Let's welcome Gauri to our show. Hi, Gauri. Please have a seat. Friends, अपने शो को आगे बढ़ाने से पहले देख लेते हैं एक शॉर्ट फिल्म. फ्रेंड्स, आज हमारे शो में हमारे साथ जुड़े हैं जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल ग्रेटर नोएडा के स्टूडेंट्स और वो हमारे एक्सपर्ट से कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे. उससे पहले आलिया, आप अपना क्वेश्चन मैम से पूछें. Readings allows individual to experience and knowledge about new world. मैम, जैसे कि आपने अभी इस न्यू वीडियो में देखा कि आप इसके बारे में हमें कुछ बताना चाहेंगे? मेरी जो बुक है इंग्लिश, उसमें मेरा एक चैप्टर ही है रीडर्स आर लीडर्स, और ये तो एवरीबडी नोज अबाउट इट. Even writers are voracious readers, and reading definitely helps because we read to live, learn, educate and entertain. Thank you so much, ma'am. Friends, अब आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं. You've written a non-fiction book and I wanted to know how reading in general would affect one's critical thinking skills. Reading definitely helps because my book is based on newspaper in education, and I had a lot of worksheets about it because I initially wanted to make a book on how adjectives can be taught through reading. For example, when we teach the chapter Christmas Carol and the character comes and we are telling that this person is a very unscrupulous person. So maybe they can remember it or not. Because my book, I have taught English language through Hindi cinema, which has never been done before. So what was it?
You have a very unscrupulous cop in Ranveer Singh in the movie Simba was very unscrupulous. So now this thing they'll retain it because they have actual person in front of them. And Wren and Martin, which we consider to be the Bible for learning English, that's a classic, and we all have read it. But those examples we don't relate it because they are not the actual example. For example, a person, he came into the room and found his room at 6s and 7s. And then I have read so many memoirs also of film stars and others also. So there is one chapter in my book, Public Speaking. So in it is Divya, one actress. She has written down that for her stage shows, she used to just mug up the lines, but it is not so. We have, for public speaking, we have to change our lines according to the audience and other things. And then she got that lesson from Sonu Sood. He said, you have to change your lines according to the audience and then you would be very successful. And then this idiom has been used, eating out of your hands, which is that you impress somebody so much that they are ready to do everything. So now I think it becomes so relatable and so interesting, and stories, they really impress whether they are adult or juniors. So we all are impressed by stories. Friends, अब आप अपना अगला क्वेश्चन पूछ सकते हैं. And I just wanted to ask that how does reading foster empathy and emotional intelligence in a person? So reading is very important for values, because whether from Panchtantra to fairy tales to our latest classics also, ultimately ये सब हमको इन स्टोरीज से ही मिलता है. हमारे पेरेंट्स भी हमको सिखाते हैं, तो छोटी छोटी कहानियों के तरीके से ही हमको वैल्यूज़ हमारे में इम्पार्ट करते. और पंचतंत्र क्यों फेमस हुआ था? क्योंकि उसके एंड में भी मैसेज होता था. तो वैल्यू सीखने के लिए इवन अमीश त्रिपाठी जी ने लिखा कि उन्होंने जब वो राइटर बने तो उनको 1000 पेजेस ऑफ बुक्स पढ़ी एक पेज लिखने के लिए. तो जितनी आप पढ़ेंगे उतनी ही आपको नॉलेज होगी और उतने ही वैल्यूज आपके अंदर आएंगे. Friends, can I have the next question please? I have one question. How does technology help in increasing the reading skills of children during the digital era? Technology has really helped us. क्योंकि जैसे मेरी बुक में भी लिखा है कि सोनाली बिंद्रा जी ने डिजिटल क्लब्स कितने सारे बिगिन हो चुके हैं, और आप थोड़े से ही ऑथर्स को सुन पाते थे. अब आपके पास इतने सारे ऑथर्स हैं जिनको आप कभी भी सुन सकते हैं. वो अपने मैसेजेस रिकॉर्ड कर सकते हैं और आपको बुक्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं एंड आप उससे आपका मन करता है कि आप और बुक्स पढ़ें. तो टेक्नोलॉजी के आप अच्छे फ़ायदे देखिए, और इसने और आप ई बुक भी पढ़ रहे हैं तो दैट इज़ ऑल्सो रीडिंग. तो टेक्नोलॉजी हैज़ रियली enhanced रीडिंग स्किल्स. So Gauri, I would like to ask you, आपको राइटिंग का इंस्पिरेशन कहाँ से मिला? I'm an avid reader, as you mentioned, and I started writing right from the age of 10. And I recently wrote a poem. The title is Forged in Flames. And what inspired me to write this poem was whenever I read books, there was always a hero and a villain. So what defines a hero and a villain? The decisions that they make. So this poem is about the situation that a villain is put in that shapes a villain into who he or she is. So may I recite it? Absolutely, Gauri. We'd love to hear your poem. A witch at heart, a queen in disguise. Her tales are far-fetched, all you need is look in her eyes. Compassionate at first glance, murderous at another. They recite the ballads of the deaths of all her lovers. Her beauty is her cover, and folks make the mistake of unfastening the armor that shields them from her true self, deathly yet captivating, their curiosity overwhelming. Her skin, if you touch, you will watch the world burn through her, as she builds her empire from the ashes. The kingdom she left behind gradually batters and crashes. Her domain is ever-changing, that she can mold like clay. Her scars make all those blind that resist their urge to find their deepest, darkest desires, to acknowledge their ever-burning fire. Who ever said you need the darkness to witness the light?
when there already remain different phases of the night. There doesn't exist a single soul that would call her good. And why should they? Because in this world of black and white, she is the color grey, symbolizing all those who lost their way to the horrors of their childhood, where they shone bright, until fate caught up to them and snatched away their light. Beautifully written, Gauri. Thank you. So, Gauri, you were very passionate about writing, right? Yes. So, what was the motive behind this poem? Books that I've read, all the villains are predefined and upon the decisions they make. So this poem, it explains how a villain is put into a situation and you're always judged on the decisions you make and never on the situation you're in. So that's Right. what inspired me. Nobody is born evil, right? Nobody, yeah. Everybody's molded into who they become. So thank you so much, Gauri. आपने इतनी प्यारी पोएम लिखी, हम सबको इंस्पायर किया और हमारे शो में आके ये पोएम नरेट भी करी. Friends, can I have the next question, please? My question to you is that, as you know, from the olden times, we've always read books in the physical form by flipping pages. But in the modern era, new forms of reading such as ebooks and audiobooks have emerged. How would you say that they've changed the way we read? Yes, students, they want to read e-books, but I think what you feel through the papers, that never comes through it. I also have started reading e-newspapers, but never the books. So it depends on person to person, but definitely in any case, whether it's a e-book or the physical book, person is reading. So reading should be increased. That is definitely happening. People are afraid that it's becoming less, but वो हो नहीं रहा है और readers और writers और ज़्यादा हो रहे हैं. So we have to see the positive point in it. Technology has made books more accessible. मैम, मैंने और आलिया ने आपकी बुक इंग्लिश पढ़ी है. हमें पता चला है वो idioms and phrases के बारे में. So ma'am, this was very out of the box idea. How did you get that inspiration to write about idioms and phrases? See, this is the thing. मैं entertainment के फील्ड में भी रही और मैं एजुकेशन के फील्ड में भी रही, तो दोनों फील्ड मुझे बहुत अट्रैक्ट करते थे. न्यूज़पेपर से मेरा मेन था कि न्यूज़पेपर इन एजुकेशन बनाए, तो पॉलिटिक्स में नहीं ऐड कर सकती थी, तो मैंने उसमें बॉलीवुड को लिया और इस तरीके से वो इडियम्स पे किस तरीके से जाके हुआ और उसमें इतना सोचने में पहले स्टोरीज कलेक्ट करी बहुत सारी, ये इसमें कोई गॉसिप नहीं है. इट्स ऑल जो आपको मोटिवेट करे, लाइफ स्किल से रिलेटेड हो, जनरल नॉलेज भी हो जिसमें, और वो आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव करे. और इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स तो आपको इतना कुछ लाइफ के प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ सिखाते हैं. जैसे कि मैंने अपनी बुक में कोट किया है, एलेक्स पदमसी जो हमारे एड गुरु माने जाते हैं, उन्होंने लिखा कि उनकी टीचर जब इडियम सिखाती थी वो बिल्कुल विजुअलाइज करते थे, जैसे अ स्टिच इन टाइम सेज 9. तो वो उनको इस तरीके से सिखाती थी कि अगर अभी आप नहीं करोगे, एक होल है, अगर अभी उसको नहीं करा तो कितना बड़ा हो जाएगा, बाद में आप नहीं कर पाओगे. मैम, जैसे हमने इस बुक में पढ़ा है, इसमें फिल्म स्टार्स की स्टोरी है, तो इसका मोटिव क्या है? इसका पर्पस यही था कि कैसे इंटरेस्टिंग बनाया जाए और इसमें कोई गॉसिप नहीं है, क्योंकि बॉलीवुड, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया है, प्रसून जोशी जी ने लिखा है कि वी कांट थ्रो द बेबी आउट विद द बाथटब. किसी ख़राब चीज़ को छोड़ते हुए हम उसकी अच्छी चीज़ों को कैसे छोड़ सकते हैं. फिल्म वर्ल्ड ने हमको कितने सिंगर्स दिए हैं, कितना टैलेंट दिया है, कितना क्रिएटिविटी दिया है, तो मैंने उसको ऐड करा. मैम, जैसा आपने अपनी बुक में लिखा है, नो शॉर्टकट टू सक्सेस, तो आप इसके बारे में हमारे बच्चों को कुछ बताएंगे? हाँ, ये वाला पूरा चैप्टर मेरा इसके ऊपर है, मोटिवेशन और लाइफ स्किल्स के ऊपर है. इसमें छोटी छोटी कहानियाँ हैं, जैसे निम्रत कौर की कहानी है, उनको 85 ऑडिशंस देने पड़े एक छोटे से ऐड के लिए, तो ये बच्चों को बहुत इंस्पायर करता है. इनफैक्ट इवन अगर आप एक एग्ज़ाम से एक दिन पहले भी पढ़ें तो सारी स्टोरीज़ में आप कोटेशंस बहुत सारी हैं, ईडियम्स हैं, तो दे आर प्रिपेयर्ड. बिकॉज लिटरेचर के लिए आपके पास बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारी बुक्स नहीं, आपके अपना सिलेबस है, भाई उसके लिए उस समय लास्ट डे पे आप क्या पढ़ें कि आप कुछ क्रिएटिव राइटिंग कर सकें, तो ये उसके लिए. Friends, can I have the next question, please? Ma'am, my question is that your book is on reading. So how does reading help us understand better
cultural integrations, historical events, or even just general societal issues? मैंने सारे ही चैप्टर रीडिंग के ऊपर है, बट जो एक चैप्टर मेरा रीडर्स आर लीडर्स, तो उसमें मैंने लिखा है इवन सोनम कपूर जो हम बोलते हैं कि स्टाइल आइकॉन है, बट क्या आपको पता है कि शी इज़ अ वोरेशियस रीडर ऑल्सो। उन्होंने जेन ऑस्टिन और भी ऑथर्स को पढ़ा है, क्योंकि उनकी मदर जो थी उनको बचपन से स्टोरी सुनाती थी। तो रीडिंग ही हमको कल्चर, हिस्ट्री सब कुछ सिखाता है। रीडिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। Friends, can I have the next question please? मेरा क्वेश्चन ये है कि किताबें पढ़ने से हमारा व्यक्तित्व कैसे बदलता है? जो कैरेक्टर फॉर्मेशन होता है हमारा रीडिंग से बहुत होता है। जितने भी महापुरुषों के बारे में, इन लोगों के बारे में हम रीड कर सकते हैं, और अगर उनको हम अपने रोल मॉडल्स बनाएं तो डेफिनेटली हमारा कैरेक्टर इनहेंस होएगा। Thank you so much मैम for coming to our show. आपने हमें और हमारे व्यूअर्स को रीडिंग की इम्पोर्टेंस बताई, इतनी सारी नॉलेज दी, आपने अपनी बुक की इतनी सारी नॉलेजेबल चीज़ें हमें बताई, इडियम्स एंड फ्रेजेस के बारे में बताया, उनका यूजेज भी। तो थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच, आई ऑल्सो एंजॉय। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। So thank you so much गौरी for coming to our show. आप ऐसे ही लिखते रहिएगा, आपने हमें और हमारे व्यूअर्स को इतना इंस्पायर किया, इतनी प्यारी पोएम लिखी। Thank you. Reading is a lifelong journey of exploring the world, of learning new things. We go on a climbing journey of self-discovery when we read. We imagine things, we create things. So friends, keep reading. फ्रेंड्स, आई एम श्योर आपको आज काफ़ी जानकारी मिल गई होगी, और बुक्स ऐसे ही पढ़ते रहिए और अपने नॉलेज को बढ़ाते रहिए। फ्रेंड्स, सोशल मीडिया को आप बुक्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूज़ है। अब तो ई बुक्स ने इतना आसान बना दिया, लाइब्रेरी आपके टिप ऑफ फिंगर्स पे है। तो पढ़ें, लिखें और मज़े करें। आलिया, अब तुम्हारा फेवरेट सेगमेंट आ गया है। यस दी, अब मेरा फेवरेट सेगमेंट आ गया है, तो चलो पीकू को बुला लेते हैं। बिल्कुल, चलते हैं पीकू के पास, देखते हैं आज वो हमें कौन सी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाने वाली है। क्या हुआ पीकू, भाग क्यों रही हो? अरे आलिया, तुम्हें नहीं पता, आज हमारी सोसाइटी में वाटर कंजर्वेशन के लिए मीटिंग कॉल की है। हाँ पीकू, मुझे पता है, वाटर को बचाने के नए नए तरीके बताए जाएंगे, है ना पीकू? पीकू और संस्कृति दी, मैं आप दोनों से बहुत नाराज हूँ, क्योंकि आप दोनों ने मुझे इतनी अच्छी अच्छी बातें क्यों नहीं बताई? अरे आलिया मेरी दोस्त, ऐसा नहीं है, मैं भागते हुए तुम्हारे पास ही तो आ रही थी। अरे आलिया, नाराज मत हो, चलो चलते हैं, सीखेंगे वाटर को बचाने के नए तरीके। जल बचाने के करो जतन, ये है जीवन का अमूल्य रतन। नमस्ते आंटी, कैसे हो बच्चों? हम सब ठीक हैं, आप कैसी हैं आंटी? मैं भी ठीक हूँ। बच्चों, आज तुमने स्कूल जाने में बड़ी देर कर दी। नहीं आंटी, हम तो सही वक्त से निकलते हैं, बल्कि अभी तो स्कूल पहुँचने में वक्त है, तो सोचा टहलते टहलते पहुँच जाएंगे। मैं तो उड़कर चली जाऊंगी। क्या मतलब? 4-5 किलोमीटर टहलते टहलते पहुंच जाओगी? मजाक कर रही हो? नहीं आंटी, इतनी दूर क्यों जाएंगे? हाँ आंटी, अपने गांव का स्कूल इतनी दूर थोड़ी है। तुम लोग अपने गांव के स्कूल में जाने लगे हो? जी आंटी, पर आप ऐसे हैरान क्यों? अरे बेटा, मैं हैरान नहीं हूँ, परेशान हूँ तुम लोगों के भविष्य के लिए। हमारे गांव के स्कूल में तो पानी की बड़ी समस्या है, स्कूल में तो नल ही नहीं है। अरे आंटी, सरकार ने अब हर स्कूल में पानी की सुविधा करा दी है। हाँ, बच्चे दिन भर प्यासे रहते हैं। चिलचिलाती गर्मी में पानी की बूंद नहीं मिलती थी स्कूल में। इसी वजह से मैंने तो अपने बच्चों का दाखिला पड़ोस के गांव के स्कूल में करा दिया था। अब हम भी वहीं रहने लगे हैं। अरे नहीं आंटी, हमारे गांव के स्कूल में पानी की कोई समस्या नहीं है। अब तो हमारे स्कूल के नल से खूब जल आता है। अच्छा, हमारे ही नहीं, सरकार ने अब देश के 9 लाख से ज़्यादा स्कूलों में नल से जल की सुविधा उपलब्ध करा दी है। अरे वाह! जी आंटी,
इससे हम सब बच्चों को तो बहुत फ़ायदा हुआ है। दूसरे गांव के बजाय अपने गांव के स्कूल में जाने से हमारा काफ़ी वक्त बचता है। अब हम स्कूल के बाद कंप्यूटर भी सीख रहे हैं। हाँ, और मुझे खेलने का समय भी मिल जाता है। इतना ही नहीं आंटी, हमारे स्कूल में पहले के मुकाबले बच्चों की संख्या भी काफी बढ़ गई है। अब तो टीचर भी मन लगाकर पढ़ाती है। जो माता पिता पहले दूर की वजह से अपने बच्चों को स्कूल में नहीं भेज पाते थे, उन्होंने भी अपने बच्चों को अब से स्कूल भेजना शुरू कर दिया है। देखो, स्कूल में पानी की सुविधा मिलने से बच्चे कितने खुश हैं। आओ, अभी मैं तुम लोगों को स्कूल के अंदर का नजारा दिखाती हूँ। इतना बदलाव हो गया, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। तो आप हमारे साथ स्कूल चलकर देख लो। हाँ, चलो। चलो बच्चों, आप सब लोग जल्दी करो, प्रार्थना शुरू होने वाली है। यस टीचर। मैम, ये लोग मिलना चाहते हैं और स्कूल में नल से जल की आपूर्ति के बारे में जानना चाहते हैं। अरे वाह, स्कूल का तो माहौल ही बदल गया है। जी, अब हमारे स्कूल में पानी की समस्या नहीं है। हमारे ही क्या, आसपास के कई गांव के स्कूलों में नल लगने से पानी की परेशानी दूर हो गई है। पानी के आने से रौनक आ गई है। अच्छा। हाँ, अब राजस्थान जैसे कम पानी वाले प्रदेश के 73% स्कूलों में नल से जल की सुविधा मिलने लगी है। ये तो वाकई बहुत अच्छी बात है। आपको पता है, हमारे राजस्थान में कुल 86,217 स्कूल हैं, जिनमें से 63,192 स्कूलों में नल के पानी की आपूर्ति हो चुकी है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। इतना ही नहीं, सरकार ने स्कूल के अलावा आंगनबाड़ी केंद्रों में भी पानी की सुविधा को मुहैया कराने का भी काम किया है। मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अब तो सारी जानकारी और तसल्ली मिल गई ना आंटी? हाँ, अब तो मैं भी अपने बच्चों का दाखिला हमारे गांव के स्कूल में ही कराऊंगी, क्योंकि अब हमारे गांव के स्कूल में बच्चे प्यासे नहीं रहेंगे। अब स्कूल में मिल रहा नल से जल। आओ, शिक्षा से बनाए बेहतर अपना कर। थैंक यू सो मच पीकू, एवरी वीक हमें इतनी अच्छी स्टोरी सुनाने के लिए। थैंक यू सो मच। आप अपनी स्टोरी से हम सबको इंस्पायर करते हैं। तो दी, ले लेते हैं हमारे जूनियर फ्रेंड्स के फादर की तरफ से एक ईमेल। बिल्कुल आलिया। तो फ्रेंड्स, ये ईमेल आया है ओपी सिंह जी फ्रॉम उत्तर प्रदेश की तरफ से। वो लिखते हैं, डियर सर मैम, आई एम फादर ऑफ त्रिशा सिंह। वी सी जस्ट जूनियर विद फैमिली एंड डॉटर। थैंक यू सो मच फॉर द अमेजिंग प्रोग्राम, वी एब्सोल्युटली लव इट। थैंक यू सो मच इतना प्यारा ईमेल भेजने के लिए एंड हमें एवरी वीक कुछ नया करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू, आपने इतना प्यारा ईमेल भेजा। Friends, now it's time to take your leave. We will meet you on the same day, same time next week, only on your favorite show, Just Junior. तो आज के प्रोग्राम के लिए बस इतना ही, और आप अपने फीडबैक हमें सेंड कर सकते हैं लॉग इन करके dailyjustjunior@gmail.com पर। और हमें Facebook और Instagram पे फॉलो करना मत भूलना। Till then, stay safe and out of trouble, my friends. Bye bye.